Good morning, students. Let us continue the story, The Enemy, and it is part 5th that I am going to start today. Actually, there are not parts in the story, it is the part 5 of my lecture on this story. So, let us read the story one by one where we left it yesterday, from where we left it yesterday. We have read that Hannah went out because of uh, nausea that she was feeling, and she was outside vomiting, and because of that Sadao got a little irritable with the American soldier because he was not able to go and help his wife outside, and he could not do that because if he left that American soldier even for 1 or 2 minutes, he would certainly die. Even a single minute was important at that time. So he could not leave him, and that's why he became irritable. When she came back, when she came back, she asked for the anesthetic, and Sadao told her that she had to saturate the cotton in the anesthetic and put it close to his nostrils. She obeyed her husband, and we have to start from this point. She crouched, she sat. Crouched means दुबक करके बैठना. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face. Piteously means dayaniya, she thought, and the lips were twisted. The lips were twisted because of the pain he was going through. The man was suffering whether he knew it or not. He was suffering whether he knew it or not. It means in his unconscious state, he was suffering, he was bearing the pain. Watching him, she wondered, watching him, she thought, if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उन्होंने स्टोरी सुनी थी कुछ कि भाई जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो सफरिंग्स होती हैं, उनको जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो पीटा जाता है, मारा जाता है, क्या वो कहानियाँ सच हैं? शी थॉट अबाउट दोज स्टोरीज. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर. फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स मीन्स अफवाह. र्यूमर्स मीन्स अफवाह. फ्लिकर्स मीन्स ऐसे ही इधर उधर से आ जाना. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड. Who told these stories? These stories were like rumors, and they were told by word of mouth. Means written में कहीं से नहीं मिलती उनको वो stories. They were just told by the people, and these all stories were contradicted. Contradicted means those stories which we find hard to believe. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. So it was a time of World War. न्यूज़पेपर में आता जहाँ भी जापानीज आर्मी ने अपना डोमिनेंस किया है, जिस भी आइलैंड पे किया है या जिस भी कंट्री में किया है, वहाँ के लोग खुश हो जाते कि जापानीज़ लोगों ने हमारे ऊपर विजय हासिल कर लिया और अब हम जापानीज़ लोगों के डोमिनेंस में रहेंगे, तो वो खुश हो जाते. न्यूज़पेपर में तो ऐसा छपता, विद क्राइज ऑफ जॉयज एट द लिबरेशन. मीन्स किसी भी कंट्री की अगर आर्मी किसी अदर कंट्री की अदर कंट्री पर अगर वो फाइट करके वहाँ पर डोमिनेंस कर ले अपना, तो न्यूज़पेपर में तो पॉजिटिव चीज़ें ही दिखानी पड़ती हैं
तो ऐसा लिखा जाता था कि जैपनीज आर्मी जहाँ भी जाती वहाँ के लोग खुश हो जाते कि हमको आज़ाद करा दिया जैपनीज़ ने और अब हम जापान का हिस्सा हैं, ऐसी न्यूज़ आती। बट समटाइम्स द शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टकीमा, पर उसे कभी कभी जनरल टकीमा की कुछ याद आती। जनरल टकीमा इज़ द मेन चीफ ऑफिसर ऑफ जापानीज आर्मी हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली। ही was very cruel. He beat his wife cruelly. Though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. जनरल टिकिमा अपनी वाइफ को घर पे पीटता था। एवरीवन न्यू इट बट नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट। वाई? क्योंकि उसने जापान को मंचूरिया में एक बैटल में जीत दिला दी थी। डज इट हैपन? ऐसा होता है? लेट मी रिमाइंड यू समथिंग। I remember something like it is in the year of 2010 or 11. महेंद्र सिंह धोनी पर कुछ एलिगेशंस लगे थे कि ही वॉज इन्वॉल्व इन IPL फिक्सिंग, और काफ़ी बड़ा इशू बन गया था, मीडिया में भी आ गया था, न्यूज़पेपर्स में डेली आती थी कि भाई देयर वॉज अ लिंक ऑफ धोनी ऑल्सो इन दिस। बट when he brought victory for Indian team in World Cup in 2011, everyone forgot about it. अब it was not proved whether he was involved in it or not, but जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो किसी ने उस बात को उठाया ही नहीं कि भाई उसकी जांच भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग धोनी हेयर, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि भाई आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे सभी के चेहरे पर खुशी आ गई, आपने उनको सभी को जीत दिला दी है, तो आप छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। कोई बात नहीं, इस इंसान के कोई अंदर कोई गलती है, कमी है, तो फॉरगेट इट। तो ये सेम एग्जांपल है यहाँ पर। भाई वो इतना क्रूअल था, अपनी वाइफ को घर पे पीटता था, सभी जानते थे कि बेकार आदमी था, लेकिन उसने अभी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मंचूरिया में जापान को जीत दिला दी। तो इट मीन्स इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था कि भाई ये इतना गंदा आदमी भी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उस पर मिट्टी डालो, भाई इसने जापान को जीत दिलाई है, तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। बट व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द कैरेक्टर पर्सनैलिटी ऑफ जनरल टकीमा? It tells us if a person beats his wife at home, it means he's a cowardice person. कायर है वो, बाहर तो उसका बस चलता नहीं है किसी पे। ऐसे लोग अपने से कमज़ोर लोगों पर ही अपना गुस्सा उतारते हैं, क्योंकि वो बाहर मजबूत लोगों से डरते हैं, उनके ऊपर तो गुस्सा उतार नहीं सकते, तो वो घर आकर के अपनी वाइफ को पीटते हैं। इट शोज अस, या अपने से अपने सर्वेंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे या अपने से जूनियर्स को डांटेंगे। दिस काइंड ऑफ पीपल डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, सो इट टेल्स अस अबाउट हिज कवर्डिस नेचर। कायरता की निशानी है ये उसकी। बट ही हैज़ ब्रॉट अ विक्ट्री फॉर मंचूरिया, इन मंचूरिया। वो अकेले नहीं लड़ा था, उसकी सेना थी, ही वॉज द लीडर। भाई सहरा तो उसी के सिर पे सजेगा ना। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance, for example? So हाना सोच रही थी कि जब जो इंसान अपनी वाइफ को नहीं छोड़ता, इस प्रिजनर ऑफ वॉर का क्या हाल किया होगा उसने। अपनी वाइफ पे ही दया नहीं करता है तो इस पे कितना गुस्सा निकाला होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट, और उसको वो स्टोरीज़ भी याद आ रही है कि भाई कैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उनको कैसे सफ़र करना पड़ता है अगर वो ऐसे पकड़े जाते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ही मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस सफरिंग। शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट। एंड वट डज इट टेल अबाउट हानाज कैरेक्टर? शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी, इवन दो अमेरिकन वॉज देयर एनिमी, still she was full of pity for that person. She hoped anxiously in tension
दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो आशा करती है, हालांकि जो हो चुका है वो हो चुका है, बस वो ऐसे आशा करती है कि काश इसके साथ ऐसा ना हुआ हो, काश इसको ऐसे पीटा ना गया हो, इसको ऐसे मारा ना गया हो, इसको टॉर्चर ना किया गया हो, बेचारे को दुख ना मिला हो, ऐसे इसको भी प्रताड़ित ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स, चोट के निशान, ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। एट दिस टाइम, उसी वक्त उसको दिखाई दिए उसके नेक पर, उसके कान के बिल्कुल नीचे घाव के निशान दिखाई दिए। दो स्कार्स, शी मर्मर्ड, लिफ्टिंग हर आइज टू सडाओ, सडाओ की तरफ देखते हुए कि ये घाव कैसे। बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक against something hard. Sadao was busy, and you know what he was busy in? He was busy in probing the bullet. गोली को ढूंढने में बिजी था वो, उसका इंस्ट्रूमेंट अब टकराया है किसी हार्ड चीज से अंदर। ही वॉज सर्चिंग फॉर इट डेंजरसली, डेंजरसली नियर द किडनी। सो बुलेट वॉज नियर द किडनी। All thought left him. His mind was completely blank at this time because it was crucial. If he made a little mistake, the person would certainly die because the bullet was near the kidney. He felt only the purest pleasure. He probed, he investigated with his fingers, delicately, very softly. Familiar means बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज रखने वाला, जानकार, विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। सडाओ को ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज थी, एक एक अंग की, एक एक एटम की नॉलेज थी कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, एनाटॉमी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर संरचना विज्ञान बोलते हैं इसको। तो हिज अमेरिकन प्रोफेसर हैड गिवन दिस नॉलेज टू हिम। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्जन का सबसे बड़ा, कार्डिनल मीन्स मेन, सिन मीन्स पाप। अगर कोई सर्जन ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज नहीं रखता है और ऑपरेशन करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? कि ऑपरेशन करने के लिए बॉडी की एक एक चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वाइल डूइंग ऑपरेशन ही कैन डैमेज अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है और किस तरीके से उसको अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है, सो दैट वाइल ऑपरेटिंग ही डज नॉट हार्म एनी अदर ऑर्गन। तो अगर उसको नहीं है पूरी नॉलेज तो वो पाप करता है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। ये मेन बात थी उस अमेरिकन प्रोफेसर की। वो ज़रूर बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता था कि भाई पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको बॉडी की, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ सर्जन, अदरवाइज यू विल बी अ क्रिमिनल। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट मीन्स सर्जन को इतनी नॉलेज होनी चाहिए बॉडी की जैसे कि उसने खुद बनाया उस बॉडी को। और खुद बनाने वाले को तो पता होता है कौन सा पार्ट बॉडी का कहाँ पर है, कहाँ से वेन्स जाती हैं, कहाँ से आर्टरीज जाती हैं, किस तरीके से स्किन जो है, कितनी इंसिजन के बाद हम उसको कैसी हमको कंडीशन मिलेगी बॉडी के अंदर। एवरीथिंग ही मस्ट नो। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। अगर कोई सर्जन इससे कम नॉलेज रखता है तो वो मर्डर करेगा। सर्टेनली ही वुड मर्डर, ही वुड किल द पर्सन इफ ही डज नॉट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द बॉडी। And Sadao had that knowledge. It is not quite at the kidney, my friend, Sadao murmured. It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. Sadao की ये आदत थी, वो अपने पेशेंट का जब ऑपरेशन करता था तो वो उसको ये बोलता था, मेरे फ्रेंड, माय फ्रेंड। बट हेयर
इट इज़ एन आयरनी. हाउ कैन इट बी एन आयरनी? लिटरल मीनिंग तो है फ्रेंड, बट ही इज़ नॉट हिज फ्रेंड हेयर, ही इज़ हिज एनिमी. सो आयरनी का मीनिंग आपको पता है. शाब्दिक अर्थ तो कुछ निकल रहा है, बट डिफरेंट मीनिंग है उसका. माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड. वाई डू डॉक्टर्स कीप टॉकिंग विद देयर पेशेंट्स? क्यों? ध्यान भटकाने के लिए. एंड सो दैट दे डू नॉट फील सो मच पेन. जब कभी कोई बच्चा किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते वक्त एक बात पूछते हैं, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप कहाँ रहते हो. वो उसको बातों में लगाते हैं, सो दैट इन दिस प्रोसेस ही कैन ट्रीट दैट चाइल्ड एंड ही डज नॉट गेट टू नो. उसको पता ही ना लगे कि उसका ट्रीटमेंट हो गया, इंजेक्शन वगैरह लग गया है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉमन विद डॉक्टर्स, दे डू दिस. But he forgot that he was his enemy now, and he used the same word for the patient, my friend. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision means cut, the bullet was out. और फिर उसने उस बुलेट को बिल्कुल परफेक्शन के साथ बाहर निकाल दिया. द मैन क्विवर्ड, द मैन ट्रम्बल्ड, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. बेहोशी में उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स तो बोले. What did he speak? What did he tell? Guts, he muttered. Choking. Choking means उसका दम घुट गया. Means उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, गला रुक गया. Guts. Guts means kidney. I'm sorry. Guts means intestines. अंतड़ियों को बोलते हैं guts. They got my guts, Sadao, Hannah cried sharply. जैसे उसने ये सेंटेंस बोला, रुकते रुकते अटकते अटकते, किसने बोला? अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर ने. बट ही इज़ जैपनीज प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो अमेरिकन, जापान ने उसको कैप्चर कर रखा है और वो वहाँ से निकल के भागा. सो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसने ये बात बोली तो हाना ने एकदम से बोला, सदाओ, हस. सदाओ सेट, कीप साइलेंस. द मैन सैंक अगेन इंटू साइलेंस. सैंक अगेन मीन्स डूब गया, इंटू साइलेंस, सो प्रोफाउंड, सो डीप दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट. इतनी गहरी शांति में डूब गया कि सदाओ को डाउट हो गया और उसने उसकी कलाई पकड़ी. हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो हेट कर रहा था उसको टच करने से. स्टिल ही डिड दिस. यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स, सो फेंट. पल्स चल तो रही थी, बट इट वॉज फेंट, धीमी. सो फीबल, इतनी कमज़ोर थी, वीक थी. पल्स तो थी लेकिन बहुत ही धीमी चल रही थी, बट एनफ, बट वो काफ़ी थी. इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, टू गिव होप, ये होप देने के लिए जीवित था, मरा नहीं था वो अभी. बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए. देन वाई डिड ही सेव हिम? ही सेव्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर. बट डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि भाई वो अपने आप को टेस्ट भी कर रहा था यहाँ पर? लेट अस चेक कि मैं इसको बचा सकता हूँ या नहीं. क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, क्या मैं इतना सक्सेसफुल सर्जन हो गया हूँ कि मैं बचा सकता हूँ इसको? ऐसे भी तो होगा उसके मन में डेफिनेटली. जब किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को कोई ऐसा चैलेंज मिलता है सॉल्व करने के लिए, जिसमें वो एक्सपर्ट हो, जिसके लिए उसकी पब्लिसिटी हो, जिस चीज़ में उसको परफेक्ट माना जाता है, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर चेकिंग हिमसेल्फ. तो उसने चेक किया वेदर ही वॉज हिज एनिमी और नॉट. ही डिड दिस, बट इट वॉज नॉट अ big reason for him to save the life of that American soldier. We know the biggest reason in his heart was because he saved him because of his tendency of kindness. He was a good human being, that's why he saved his life. But certainly I do not want this man to live, he thought. No more anesthetic, he told Hana को उसने बोला कोई anesthetic देने की ज़रूरत नहीं है. And the operation was successful. So students, I think it is enough for today. We will continue the story tomorrow.
and I want you to read it carefully till this point. You should read it again. We will meet tomorrow again. Till then, my dear students, take care. Bye.